हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग जो है फिर से एक सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ माय प्रीवियस इंटरव्यूज। एंड बेसिकली एन इंजीनियरिंग मैनेजर आस्क्ड दिस प्रॉब्लम इन आवर डिज़ाइन इंटरव्यू। अगर तुम देखोगे तो ये आई थिंक जब मैं बैंकॉक थाईलैंड के लिए, जब अगोड़ा की जो हेड क्वार्टर है उसके लिए जब इंटरव्यू कर रहा था फॉर सीनियर एसडी, तब मेरे से ये पूछा गया था। इफ़ यू सी आई हैव द एडिट एक्सेस, दैट मीन्स इट वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है। Why this problem is very important? I think couple of reasons. One is usually क्या है कि आजकल मार्केट में जो है और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है बहुत सारे अवेलेबल हैं फॉर स्टैंडर्ड सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। जैसे कि मान लो, इफ़ लेट्स से इंटरव्यूअर आस्क्स यू टू डिज़ाइन ऊबर, तो तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू डिज़ाइन अ प्रॉब्लम। बट द होल आइडिया of design rounds was to basically see how you come up with the solutions when, let's say, when an unknown problem is, let's say, thrown at you. How do you come up with the solutions? So that's why, because this problem does not match, let's say, the typical standard product design where you can basically find online resources available for this particular problem. So that's why this problem is really really important. लेट्स से अगर ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो अननोन प्रॉब्लम्स हैं, अगर तुमसे इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, देन हाउ कैन यू, लेट्स से, टैकल द प्रॉब्लम, हाउ कैन यू स्टार्ट बिल्डिंग द सोल्यूशन ऑन टॉप। ठीक है। एंड लाइक ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डिज़ाइन एंड देन विल ट्राई टू इवॉल्व दिस डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। और इसके अलावा आई थिंक because I was interviewing for senior SD, so I think the expectation from the interviewer was very clear, although he did not mention it beforehand. But I kind of understood from the looks of it, from his looks, that he was expecting a good solution, and the solution that can scale, can handle, let's say, can easily handle additional requirements. If, let's say, he wants to add additional requirements, system should be able to easily handle the error handling scenarios. How do you come up with the accuracy and all? ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अपन जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। बट इन जनरल आई थिंक जब मैं इंटरव्यू में गया था तब उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये एक्सपेक्टेशन थी मेरे से कि आई विल बिल्ड द एंड टू एंड सोल्यूशन, एंड and this solution should be able to, basically I should be able to scale this solution. And if he wants to add more requirements to the system, he basically wanted to see how would you build the solution on top of your own solution. All right. और इसके अलावा आई थिंक उसने एक एक्सपेक्टेशन मेरे से और क्लियर कर दी थी कि he wanted me to drive the whole interview. Even though I was asking, let's say, the cross questions, or usually what we say is clarifying questions. So he wanted me to take assumptions. So he wanted to take me, basically, he wanted me to take the role of the senior engineer as well as the product manager during the interview. So he made it very clear during the interview. So he clearly said, whatever, let's say, you have the whatever questions you have, you can basically safely assume whatever you want to assume. If he feels that a certain decision is very important in the system, then he will interject, but more or less you are free to design from the given question. So I think that was the overall expectation from the interview. ठीक है। तो ये आई थिंक मेरा अ, ये आई थिंक राउंड 3 था मेरा। इंटरव्यू प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 2 कोडिंग राउंड हुए थे उससे पहले, और उसके बाद में फिर ये डिज़ाइन राउंड हुआ था। बेसिकली सीनियर एसडी के लिए उन्होंने 2 कोडिंग राउंड, 2 डिज़ाइन राउंड और एक कल्चरल फिट राउंड रखा था। तो cultural fit I felt was not that important, or basically they just wanted to see what was the motivation behind me moving, let's say, from India to Thailand or Bangkok. So it was more or less that. But I think their evaluation criteria was also very clear, that they wanted me to evaluate on the
evaluate on these डिज़ाइन राउंड्स। कोडिंग राउंड्स मेरे हिसाब से मेरे सही गए थे। आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड आई हैड वेरी गुड कोडिंग राउंड्स। वो दोनों में आई थिंक आई गॉट द स्ट्रॉन्ग हायर, बट मोर और लेस आई थिंक कोडिंग राउंड वर इम्पॉर्टेंट basically to filter the candidates, but eventually the part where you can shine were the system design interviews. So I think पहला सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू जो था वो मेरा एक जिस टीम के लिए वो लोग हायर कर रहे थे उस टीम के इंजीनियरिंग मैनेजर से था। और उन लोगों ने ये आई थिंक पहले ही क्लियर कर दिया था कि यू विल हैव टू डिज़ाइन राउंड्स। इट वाज नॉट बिकॉज आई परफॉर्म not that good in the first design round, that's why they scheduled the second interview. All of these rounds were scheduled beforehand, मतलब जो शेड्यूल था मेरा इंटरव्यूज का इट वाज प्री डिसाइडेड कि दो कोडिंग राउंड होंगे, दो डिजाइन राउंड होंगे और एक हायरिंग मैनेजर राउंड होगा। ठीक है, कूल। तो अब प्रॉब्लम एक्चुअली में डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी? सिंपलेस्ट उसने बहुत एक लाइन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट किया था एक जहाँ पे भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे। ऑब्वियसली वो जितना मिनिमम और मिनिमल प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें दे सकता है उतना देने की कोशिश करेगा, एंड जस्ट वांट टू सी हाउ यू लेट्स से scope down the problem, how do you define the boundaries of the system, and then you start building around those boundaries। ठीक है, तो गिवन था कि एक MySQL और RDBMS टेबल दे रखी है। यहाँ पे उसने बोला था यू कैन अज्यूम एनी रिलेशनल डेटाबेस, you have a table which holds around 500 million records and each record defines a certain task। ठीक है, और वो जो टास्क होगा वी हैव टू परफॉर्म दैट टास्क इनडेफिनेटली। हाउ? तो टेबल का जो स्ट्रक्चर था, तो द टेबल विल हैव द आईडी टू आइडेंटिफाई द रो। Basically the schema of this of the table was something like this: id to identify the row, url, this url was basically an external system where you make a call to this system every time you execute this particular task, and every time you hit the url you get the different result। ठीक है, third one was the frequency। Frequency was nothing but, let's say you have a task and the frequency of task is, let's say, 5 minutes, then this task should be executed every 5 minutes for indefinite period until unless this record is not deleted from the MySQL or whichever relational database you assume। ठीक है, और इसके अलावा URL was reference to some website। I think ये इतना important है नहीं। Basically he wanted to perform certain task। Basically this task wants you to perform certain action, and that action is nothing but hitting this particular URL, and whatever the result is you save it somewhere, that's it, and some other team will start working on that result। बेसिकली लेट्स से एनालिटिक्स बिल्ड करनी है या इंटरनेट को लेट्स से तुम्हें कुछ सर्टेन वेबसाइट्स को अगर क्रॉल करना है तो कुछ भी हो सकता है। द द पर्पस वाज हाउ डू यू डिजाइन अ सिस्टम which can handle these many records, 500 million records in the table। Cool। So in short, I think this was my observation that he wanted me to build a scheduler। And why I said distributed scheduler, because if you have, let's say, 500 million records, I don't think a single machine or a single machine can handle 500 million records, and that's why I came up with the identification of the system as the distributed scheduler। Cool। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन को जो है अपन इधर पेस्ट कर लेते हैं। Cool। ओए, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड, मैं जस्ट प्रॉब्लम को अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है।
हम इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलर। अब यहाँ पे उसने एक सिंगल स्टेटमेंट लाइन मेरे को दी थी, ये बाकी सब मैंने खुद उससे क्रॉस क्वेश्चंस करके, क्लैरिफाई क्वेश्चंस करके, या मैंने खुद अज्यूम करके ये टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था। ही जस्ट गेव मी दिस लाइन। नाउ आप अज्यूम करो कि अगर तुमने लेट्स से कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलर डिज़ाइन नहीं किया है, या फिर इन इन जनरल शेड्यूलर्स कैसे काम करते हैं अगर तुमने ये डिज़ाइन नहीं किया है, देन यू विल हैव टू थिंक अराउंड कि तुम कैसे बिल्ड कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट ही वांटेड मी टू लेट्स से थिंक। ऑलराइट, तो हमारा टेबल स्ट्रक्चर जो है, इसको ना मैं एक्चुअली मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमारा टेबल स्ट्रक्चर था, टेबल structure was ID, or let's call it task ID, then URL, उसके बाद में frequency, ठीक है। I think that's it. बाकी created at or updated at whatever you want to keep, but more or less this was the record, ठीक है। तो हम लोगों का जो फ्रेमवर्क था, हम उसी के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये फ्रेमवर्क मेरा उस टाइम पे थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ करता था, बट मोर और लेस एक दो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने उस फ्रेमवर्क में बाद में ऐड करें और रिमूव करें, बट मेरा फ्रेमवर्क उस टाइम भी मोर और लेस सेम ही था जैसे मैं प्रॉब्लम सिस्टम डिज़ाइन की सॉल्व करता था, ठीक है। तो सबसे पहले टिट हमारा सबसे पहले क्या था, रिक्वायरमेंट्स हम लोग जो है अपनी निकाल लेते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम्हारे पास टास्क गिवन tasks should be performed at the mentioned frequency, ठीक है। एक तो ये सिंपली समझ में आ रहा है बिकॉज वी वांट टू लेट्स से एग्जीक्यूट द एक्शन, तो उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये है रिक्वायरमेंट। इसके अलावा तुम्हें और कुछ रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रही है। अब मैं जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अभी जब हम लोग इसमें जितना डीप डाइव करेंगे तब तुमको समझेगा इसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आई थिंक एक तो स्केलेबिलिटी इज द हाईली स्केलेबल होना चाहिए सिस्टम, हाईली स्केलेबल, स्केलेबल बेसिकली इसको अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें तो 500 मिलियन प्लस टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड विदाउट अ मिस, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सेकंड वर्स, अगर अब तुम देखो जैसे ही मैंने मिस किया है, ठीक है, ये जो चीज़ मैंने बोली विदाउट अ मिस, तो लेट्स से कोई अगर कोई एक टास्क था जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 मिनट थी, देन उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग आर वी अलाउड टू स्किप, लेट्स से इफ द सिस्टम इज अनअवेलेबल और समथिंग हैपन्स और द machine goes down and we lose that task, are we allowed to miss that task? So he said let's assume you can, let's say for now try to build the solution uh, as accurate as possible without a miss, and then we'll try to build the solution on top of that, ठीक है। सेकंड इज ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी जो है जो सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्केल जो है मेरे को वो स्केल अराउंड 500 मिलियन प्लस का है। थर्ड इज वी नीड टू बिल्ड अ लो लेटेंसी सिस्टम, लो लेटेंसी सिस्टम। Why? So let's call this 200 ms. Why? अगर लेट्स से किसी टास्क की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 मिनट है एंड योर सिस्टम, लेट्स से अगर तुम्हारे सिस्टम में मल्टीपल वर्कर्स हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टास्क को, अगर तुम वर्कर को ही वो टास्क 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद देते हो, तो कोई, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो तुम्हारी
फ्रीक्वेंसी थी तुमने उसको वायलेट कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारी सेकंड क्या आ गई कि एसएलए, एसएलए नहीं बोलना चाहिए बट हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी वायलेटेड। ठीक है। इसके अलावा मेरे को और कुछ समझ आ नहीं रहा है इसमें। इसके अलावा हो सकता है कि उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए हो। ड्यूरेबिलिटी आई थिंक क्योंकि तुमने कोई एक्सटर्नल टास्क परफॉर्म किया है, राइट? सो यू कॉल्ड एन एक्सटर्नल एंड पॉइंट द यूआरएल दैट वाज गिवन इन द टास्क आईडी। तो तुमने उसको हिट किया एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट यू सेव इट समवेयर। सो आई थिंक दैट वाज द, बट आई थिंक इस पे ज़्यादा उसका फोकस था नहीं इंटरव्यूअर का। मोरलेस उसका फोकस जो था इन तीन चीज़ों पे था कि हाउ डू यू बिल्ड द स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलर। ठीक है। अब तीसरी हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तीसरी हमारी जो जो टॉपिक रहती है व्हेन वी लेट्स से ट्राई टू सॉल्व सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम इन एन इंटरव्यू, तो हम लोग जो है कोर एंटिटीज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बट कोर एंटिटी हमारे पास ऑलरेडी एक दे रखी है, तो हमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको मैं इससे स्किप कर रहा हूँ। एंड सेम गोज़ फॉर एपीआई डिज़ाइन। सो आई थिंक अगर तुम देखो तो यहाँ पे हमारे सिस्टम से कोई भी एक्सटर्नल यूज़र जो है या कोई भी बिजनेस या इंटरनल सर्विसेज जो है हमारे सिस्टम से क्या बोलते हैं इंटरैक्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो 500 मिलियन रिकॉर्ड्स दे रखे हैं दे आर गिवन बिफोर हैंड, सो यू कैन अज्यूम कि उनका इंजेक्शन इन द सिस्टम हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू डू नॉट केयर अबाउट दैट पार्ट कि वो रिकॉर्ड्स जो थे वो रिकॉर्ड्स इतने सारे उस पर्टिकुलर टेबल में कैसे आए। कूल। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे एपीआई डिज़ाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अपन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता था, हम लोग क्या करते थे, हाई लेवल डिज़ाइन। उसके बाद में ठीक है, तो हाई लेवल डिज़ाइन में हमारा फोकस क्या रहता था कि हम कैसे करके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू दी हाई लेवल डिज़ाइन। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो है ये टेबल स्ट्रक्चर हमें दे रखा है। ठीक है। तो ये टेबल स्ट्रक्चर लेट्स से मेरे को जो है वर्टिकली लिखना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल लगता है। इट रिप्रेजेंट्स देम एज आई शुड कॉल एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। ठीक है। अब आते हैं, तो ये रहा हमारा डेटाबेस। ठीक है। ओके, है ना? और लेट्स अज्यूम हमारे सिस्टम में एक जो है शेड्यूलर सर्विस है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूलर सर्विस इज टू पिक द टास्क फ्रॉम द डेटाबेस जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं एंड देन गिव देम टू द वर्कर नोड्स। ठीक है। वर्कर नोड कह देते हैं इसको। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ है। तो आई थिंक सबसे पहली प्रॉब्लम हमें डिज़ाइन में क्या विजिबल हो रही है, तुम लोगों को विजिबल हो रही है कि नहीं? तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज इन ईच रो वी ओनली हैव द फ्रीक्वेंसी एंड वी डोंट नो व्हेन दिस टास्क शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो हमें पता कैसे चलेगा हम कब इसको एग्जीक्यूट करें? सो दैट्स व्हाई we need to modify the original table structure. Let's say add an attribute called next run at। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली बता रहा है कि अगर किसी टास्क की फ्रीक्वेंसी 1 मिनट है या 2 मिनट है तो अब जो है लास्ट, मान लो अगर अभी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो अभी स्टार्ट होने के बाद से नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा नाउ प्लस 2 मिनट्स एंड देन 2 मिनट्स फ्रॉम देन एंड देन 2 मिनट्स फ्रॉम देन। सो बेसिकली वी आर टेकिंग जंप्स फ्रॉम 2 to 2 मिनट्स। तो ये हमें वो बताएगा। ठीक है। तो अगर अब हमें ये पता है तो हमारा जो शेड्यूलर है इट कैन fetch the data from the whole database. Now this scheduler, अब तुम ये बताओ क्या तुम जो है 500 मिलियन रिकॉर्ड्स की टेबल को फुल स्कैन मारना चाहोगे?
या जो है तुम सर्टेन सबसेट के साथ काम करना चाहोगे। तो अगर तुम फुल स्कैन मारोगे तो डेटाबेस बैठ जाएगा। व्हाई? बिकॉज द सीपीयू यूसेज विल शूट अप और द मेमोरी यूसेज विल गो अप। तो उस केस में क्या होगा कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गए, इवेंचुअली जो है डेटाबेस विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरीज। ठीक है, तो हम लोग जो है पूरी टेबल स्कैन नहीं मार सकते। देन वी नीड टू somehow make sure that we are only working with a subset of the data और subset of the tasks। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडिया आता है, यहाँ पे आता है टाइम बेस्ड, लेट मी जस्ट टाइम, या लेट्स कॉल इट विंडो बेस्ड एग्जीक्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे जो है ब्लाइंडली कोई टास्क, सारे टास्क पिक नहीं करेंगे। जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर जो है एक सर्टेन विंडो को पकड़ लेगा, लेट्स से 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा, जो भी है हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं। इट कैन बी कन्फिग्रेशन बेस्ड एज वेल, बट जो है विंडो बेस्ड एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे। अच्छा, मुझे एक कंपोनेंट बताना रह गया, आई थिंक दिस वन। सो ये जो है फर्स्ट टाइम लोडर, आई थिंक इसका काम सिंपली ये होगा कि ये जो इनिशियली इसने रो मॉडिफाई की थी ना, ये रो मॉडिफाई करके उसने जो नेक्स्ट रन एट ऐड किया था, ये बस एक बार करेगा व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग विंडो बेस्ड पे काम करते हैं, देन फ्रॉम 500 मिलियन लेट्स से रिकॉर्ड्स, वी विल वर्क विद द सबसेट ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हमारी जो है क्वेरी कैसी रहेगी, अगर लेट्स से ये माई सीक्वल है, तो लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टास्क वेयर where next run at is less than or equal to now प्लस हमने जो भी विंडो ले रखी है, विंडो साइज कि ये 2 मिनट हो सकती है, 5 मिनट हो सकती है। तो हम जो है अगले बस 5 मिनट के टास्क ही निकालेंगे, एंड बिकॉज दिस सर्विस, शेड्यूलर सर्विस इज कंटिन्यूसली लेट्स से रनिंग एट सर्टेन इंटरवल, देन इट कैन सिंपली फेच एवरी 5 मिनट्स। तो हमारा कोई भी टास्क जो है ओवरड्यू कभी नहीं होगा, एंड वी ऑलवेज हैव समथिंग टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, क्या शेड्यूलर सर्विस को डायरेक्टली वर्कर नोड से इंटरैक्ट करना चाहिए? तो आई थिंक नहीं। वाई? बिकॉज लेट्स से द सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर नोड इज कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम, तो उसकी लेटेंसी अलग है। ठीक है, उसका जो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर लेट्स से मान लो एक्सटर्नल सर्विस डाउन है या एक्सटर्नल लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में क्या होगा कि एक वर्कर नोड पे लोड पड़ेगा। हो सकता है वर्कर नोड डाउन चली जाए, तो शेड्यूलर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि रीट्राई करे, एरर हैंडलिंग करे, वगैरह वगैरह। So, but scheduler service की responsibility was always to make sure that we execute the task at the given time. That's it. Not retry, handle and so on. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है शेड्यूलर सर्विस हमारी डायरेक्टली काम नहीं करेगी, बेसिकली वर्क नहीं करेगी विद वर्कर नोड। वी विल हैव सम message queue in between, let's call it Kafka. Obviously Kafka is highly available, highly scalable system, तो हम लोग जो है काफका के थ्रू जो है काम करेंगे। सो विल हैव काफका इन बिटवीन, एंड नाउ सो व्हेन this query returns us, let's say the task id is not टास्क आईडी। सो हमारे पास जो भी टास्क आईडी आएंगे, हम ये सारी टास्क आईडी को जो है काफका में पब्लिश कर देंगे, एंड द वर्कर नोड्स विल कीप ऑन लेट्स से कंज्यूमिंग मैसेजेस फ्रॉम काफका। एंड जब उनको कोई आईडी मिलेगी, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल fetch the metadata from the database, fetch metadata from the database like the URL and other things। ठीक है, और जो भी डेटा आएगा वो ये जो भी एक्सटर्नल सिस्टम है हमारा, मान लो एक्सटर्नल यूआरएल जो भी था, ये उसको कॉल करेंगी
वर्कर नोड्स, तो वो कॉल कैसे करेंगे, ये सिंपली करेंगे और जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसको कहीं भी सेव कर देंगे कहीं। आई थिंक इस पे इंटरव्यूअर का ज़्यादा फोकस नहीं था कि तुम इसको कहाँ कैसे स्टोर करोगे। ही जस्ट वांटेड टू सी कि तुम जो है कैसे करके डेटा को बेसिकली बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट करोगे टास्क को विद इन द टाइम विंडो। ठीक है, अब जब ये वर्कर नोड एग्जीक्यूट कर लेगा टास्क, देन इट नीड्स टू अपडेट द नेक्स्ट रन एट। तो ये क्या करेगा, इसके पास में उस पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड मेटाडेटा था ही ना, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यूआरएल क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब ये कॉल सक्सेसफुल हो जाएगी, देन व्हाट वी नीड टू डू इज दिस वर्कर नोड विल गो अहेड एंड अपडेट द नेक्स्ट रन टाइम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस केस में कि अगर हमने अभी टास्क को कोई एग्जीक्यूट किया है एंड द टास्क फ्रीक्वेंसी इज लेट्स से 3 मिनट और 5 मिनट, then worker node will go ahead and update the task id कि अब हमें उसको जो है नेक्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, विच इज़ नाउ प्लस जो भी होगा, मतलब लास्ट नेक्स्ट रन टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ओके। तो अब इस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फेलियर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सबसे पहले तो हमारा क्या है, शेड्यूलर सर्विस। तो शेड्यूलर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी टास्क आईडी है वो कहीं से लाना एंड देन गिव देम टू दी वर्कर नोड्स थ्रू काफका। बट अगर लेट्स से शेड्यूलर सर्विस गोज डाउन, देन वर्कर नोड्स का कोई फ़ायदा होगा, दे विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क। देन वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव सफिशिएंट task available, or basically make sure that the scheduler service never goes down, which is never the case। तो अब यहाँ पे कपल ऑफ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है मान लो हम इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस को रन कर सकते हैं, सॉरी, अब मल्टीपल इंस्टेंसेस को रन कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली। ठीक है, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर लेट्स से तुम्हारे दोनों, लेट्स से अभी सिस्टम में तुम्हारे दो ही इंस्टेंस हैं, ठीक है, जो शेड्यूलर सर्विस के दो इंस्टेंस रन कर रहे हैं एंड बोथ ऑफ देम रन दी सेम क्वेरी। तो उस केस में क्या आएगा, तुम्हारे पास जो है बेसिकली क्या आएगा, यहाँ से सेम रिजल्ट आएगा बिकॉज रीड कर रहे हो तुम, तो कंकरेंसी तो अलाउ करता है डेटाबेस या माई सीक्वल। वाई? बिकॉज रीड्स डू नॉट कन्फ्लिक्ट और रीड्स आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, दैट्स वाई बोथ द क्वेरीज विल लेट्स से अगर एग्जैक्टली एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन दे विल गेट द एग्जैक्ट सेम डेटा। ठीक है, तो अब तुम ये डीडुप्लीकेशन ऑफ द टास्क आईडी कैसे करोगे, इफ यू लेट्स से डू नॉट डू द डीडुप्लीकेशन ऑफ द टास्क आईडीज एंड यू जस्ट इंसर्ट देम इन द काफका। तो उससे क्या होगा कि सेम मैसेज इज बीइंग एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स एंड काफका आल्सो गारंटीज एटलीस्ट वंस डिलीवरी। तो क्या होगा कि तुम सेम टास्क को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहे होगे। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या है, बेसिकली एक डीडुप्लीकेशन चाहिए है, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द सेम टास्क इन द सेम विंडो मल्टीपल टाइम्स। तो डीडुप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली हम लोग अगर लेट्स से सी प्लस प्लस या जावा में तुम अगर कोड करते हो, तो डीडुप्लीकेशन के लिए सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे मन में क्या आता है, सेट या फिर हैश मैप्स। तो कोई ऐसा सिस्टम है जो तुम्हें सेट्स या हैश मैप दे सकता है? ऑब्वियसली वी हैव। तो हमारे पास कौन सा ऐसा सिस्टम है? तो रेडिस हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है विच गिव्स अस एग्जैक्टली दिस डेटा स्ट्रक्चर। क्या? लेट्स से क्या रेडिस रेडिस में क्या है, जो हमारे पास सॉर्टेड सेट्स होते हैं, दे गिव अस एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो लेट्स से अगर तुम सेम टास्क आईडी को एग्जीक्यूट करना जाओगे, तो सिंगल हैंडेडली ओनली द टास्क आईडी विल नॉट सफाइज। व्हाई? क्योंकि सेम टास्क सेम फ्रीक्वेंसी पे, मतलब उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी उस पर एग्जीक्यूट कर रहा है अगेन एंड अगेन। तो सेम टास्क
just will not suffice. We need to just make sure that the same task within the same window is not being executed multiple times. तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो भी नेक्स्ट रन ऐड था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो होगा, एक सेकेंड, ये जो कॉम्बिनेशन है टास्क आईडी और नेक्स्ट रन ऐड, ये एक विंडो के लिए फिक्स रहेगा। एक विंडो में ये एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये पेयर, करेक्ट। तो शेड्यूलर सर्विस जो है बेसिकली हैश सेट्स में या सॉर्टेड सेट्स में जो है रेडिस में ये डेटा स्टोर कर देगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि स्टोर, इसको बोल देते हैं टास्क आईडी नेक्स्ट रन एट, ठीक है, इन sorted set to avoid duplication, ठीक है, डुप्लीकेशन। अब अगर हमने यहाँ पे रेडिस में टास्क डाल दिया, अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि रेडिस में तुम किस तरीके से इंसर्ट करना चाहो। क्या तुम्हारे पास रेडिस में जस्ट एक बेसिकली तुम्हारे पास एक तुम बड़ा रेडिस सेट रखना चाहोगे, रेडिस सॉर्टेड सेट रखना चाहोगे, या फिर तुम कोई और तरीका निकाल सकते हो। तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो ये जो है टास्क का जो नेक्स्ट रन एट, ये बहुत की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली उस टास्क को उस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट। तो अगर हम लोग जो है बकेटिंग कर दें किसी तरीके से, बेसिकली जो हम लोग करते हैं ना कि एक बकेट में सारे टास्क आईडी डालते रहें, कि इसका मतलब ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सारे टास्क हमें एग्जीक्यूट करने हैं, है ना। तो हम लोग बकेटिंग की हेल्प से बेसिकली मेक श्योर कर सकते हैं कि सेम टास्क विद इन द सेम विंडो इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम। अब ठीक है, तो शेड्यूलर का काम जो हो गया, लेट्स से फ्रॉम इंजेस्टिंग, from fetching the records from the database, then storing them in Redis. Now, should the scheduler service be responsible for fetching the records, और कि अब इन जो टास्क हैं फॉर अ पर्टिकुलर विंडो, तो तुम्हारे पास में लेट्स से अगर मैं एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प की बात करूं तो ये किस तरीके का दिखेगा, तो तुम्हारी बकेट कोई ऐसी ही दिखेगी। लेट्स कॉल दिस शेड्यूलर कोलन, लेट्स से नेक्स्ट रन एट, ठीक है। उस पे तुम्हारा टास्क आईडीज पड़े होंगे, ठीक है, टास्क आईडी, ठीक है, टास्क आईडी 1, टास्क आईडी 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, यहाँ पे टास्क आईडी को बकेट कर दिया ऑन दी नेक्स्ट रन, सॉरी टर्न नहीं, रन, नेक्स्ट रन एट। अब प्रॉब्लम यहाँ से ये आ रही है कि शेड्यूलर सर्विस का काम जो था कि इसने शेड्यूल कर दिया, इसने तुम्हें वो डेटाबेस से रिजल्ट लाके रेडिस में दे दिए। नाउ वी नीड सम कंपोनेंट which can let's say fetch all these records and then insert them into the into the Kafka, ठीक है, so that worker nodes can keep on executing, ठीक है। तो let's go call this polar, या polar क्या बोले, let's call this poll service, ठीक है। इसका काम क्या है अभी देखते हैं। इसका काम सिंपली ये है कि रेडिस से रिकॉर्ड्स को उठाना, ठीक है, रेडिस से जो तुम्हारी बकेट है उस बकेट में से रिकॉर्ड्स उठाना और उनको जो है काफका में इंसर्ट कर देना। इसका काम इतना है। अब ये जो है तुम्हारा शेड्यूलर सर्विस का काम नहीं बचा। शेड्यूलर सर्विस का काम था आइडेंटिफाई करना वो टास्क जिनको वो एग्जीक्यूट करना है इन दैट विंडो। उसने आइडेंटिफाई करके वो टास्क तुम्हें दे दिए। नाउ पोल सर्विस विल मेक श्योर दैट दीज टास्क्स आर एग्जीक्यूटेड इन दैट विंडो, ठीक है। अब पोल सर्विस कैसे करके एग्जीक्यूट कर सकती है, मतलब सबसे पहले हमें क्लेम करना है ना। तो क्लेमिंग कैसे करके तुम कर सकते हो कि तुम डायरेक्टली उस टास्क के सारे, बेसिकली उस बकेट के तुमने सारे टास्क निकाल लिए। तो लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा
जो ये पोल सर्विस है ये रन्स एवरी मिनट, बेसिकली सर्विस इज, हम लोग जो है कंटिन्यूअसली रनिंग एंड पिक्स द टास्क एवरी फ्रॉम एवरी बकेट। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो लेट्स से तुमने जो बकेट है यहाँ पे ग्रैनुलर 1 मिनट की बकेट बना रखी है, तो उस पर्टिकुलर मिनट पे कितने टास्क हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है तो वो उस पर्टिकुलर मिनट वाली बकेट में अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इस सर्विस जो पोल सर्विस है इसका काम क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली रन कर रही है, कोई क्रॉन नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली रन कर रही है। सो ये रन करती है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मिनट वाली बकेट पे जाती है, जितने भी टास्क हैं अवेलेबल उनको उठाती है और उनको इंसर्ट कर देती है इनटू काफका, एंड देन इनको इस पर्टिकुलर सेट से डिलीट कर देती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में वर्कर नोड्स जो है उन टास्क को पिक कर ही लेते हैं, एंड देन दे बेसिकली अपडेट द नेक्स्ट रन एट इन द टास्क आईडी। अब हम लोगों ने जो है एटलीस्ट अपना जो इंजेक्शन वाला फ्लो था उसको तो हैंडल कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग जो है अपने सिस्टम में फिर से क्या बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स अज्यूम बिकॉज दिस पोल सर्विस इज डायरेक्टली फेचिंग ऑल द टास्क ऑन दैट बकेट, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर इसने उस पर्टिकुलर मिनट पे पोल किया तो इसको ये सारे टास्क मिल जाएंगे, लेकिन फॉर सम रीजन इफ दिस पर्टिकुलर सर्विस गोज डाउन तो उस समय क्या होगा, basically we will not have any task from that window, हमने यहाँ से कोई भी टास्क क्लेम नहीं किया और काफका में भी नहीं होगा, तो we will miss those tasks। तो instead of running it as a single instance we can run it as a multiple, basically we can scale it horizontally, ठीक है। बट अब एक सेकेंड, बट अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब हम जो हमारी शेड्यूलर पे प्रॉब्लम थी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है ना। वाई? क्योंकि अगर दोनों जो है दोनों पोल सर्विस के जो इंस्टेंस हैं, इफ दे गो टू दैट टाइम बकेट एंड दे ट्राई टू रीड विच दे विल बी एबल टू, एंड देन उसके बाद में क्या होगा वो एग्जीक्यूट बेसिकली वो सारे टास्क आईडी जो उन्हें उस बकेट से मिले उनको काफका में इंसर्ट कर देंगे। तो इंस्टेंस 1 ने लेट्स से फेच किया, इंस्टेंस 2 ने भी फेच किया, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम दोनों को जो है लिस्ट ऑफ टास्क आईडीज मिली, दोनों ने काफका में इंसर्ट किया और उसके बाद में उसने पहले बेसिकली दोनों ने में से पहले वाले ने डिलीट कर दिया, तो सेकंड वाले का जो है डिलीशन फेल हो जाएगा, बिकॉज अब जो है पहले वाले का डिलीशन सक्सेसफुल हो गया तो अब वो बकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो सेकंड वाले का डिलीशन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि हमने अगेन सेम टास्क आईडीज को फॉर द सेम विंडो 2 बार इंसर्ट कर दिया। तो लेट्स से अगर तुम्हारे पास 3 पोल इंस्टेंस रन कर रहे हो, सॉरी अब मैं आता हूँ, अगर तुम्हारे पास 3 पोल इंस्टेंस रन कर रहे होते तो चांसेस हैं कि तुम 3 बार सेम आईडी को एग्जीक्यूट करोगे। तो हम सबसे पहले अपने सिस्टम का सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अवॉइड करने गए थे, हमने एक नई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दी, और हमने ये प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस क्या करी है कि हमारी जो प्रॉब्लम पहले ही एग्जिस्ट करती थी बिकॉज ऑफ द सिंगल इंस्टेंस शेड्यूलर वी वेंट अहेड विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द शेड्यूलर सर्विस एंड वी इंसर्टेड देम इन टास्क आईडी एंड नेक्स्ट रन एट पेयर को हमने इस बकेट में इंसर्ट किया था। तो क्योंकि रेडिस जो है सॉर्टेड सेट एक डेटा स्ट्रक्चर देता है, इस वजह से इस पाथ पे तो डुप्लीकेट्स हैंडल हो गए थे, तो इंजेक्शन में डुप्लीकेट्स हैंडल हो गए, बट अब उनको जब हम लोग काफका में इंसर्ट कर रहे हैं सो दैट वर्कर नोड्स कैन पिक द टास्क अवेलेबल जो उन्हें एग्जीक्यूट करने हैं, अब हम फिर से सेम प्रॉब्लम पे आ गए। बट यहाँ पे जो ट्रिकी केस है, यहाँ पे अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, या प्रीवियस नहीं तो 1-2 वीडियो पहले मैंने लुआ स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो
रेडिस बेसिकली, रेडिस में एक फीचर होता है कॉल्ड लुआ स्क्रिप्ट्स। इसका काम सिंपली ये है कि जो भी ऑपरेशन तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, दे विल बी एग्जीक्यूटेड इन लुआ VMs, एंड दोज VMs will execute your Redis operation in isolation and give you the result back. That's the core gist. Isolation is important. तो अब हम लोग यहाँ पे जो है Lua scripts का ही यूज करेंगे। तो instead of fetching all the task IDs from the Lua, all the task IDs for a particular time window, we will fetch a subset. तो अब ये पोल इंस्टेंस क्या है? बिकॉज रेडिस इज अ सिंगल इंस्टेंस, सिंगल थ्रेडेड सिस्टम। तो मल्टीपल इंस्टेंसेस लेट्स से अगर रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं, ऑल ऑफ दोज रिक्वेस्ट विल बी सीरियलाइज्ड, एंड लेट्स अज्यूम वी आर रनिंग फॉर नाउ अ सिंगल इंस्टेंस रेडिस। तो एक इंस्टेंस पे जो है रिक्वेस्ट जो है सिंगल पाइपलाइन हो जाएंगी, एंड अब रेडिस पिक करेगा उस फर्स्ट रिक्वेस्ट को। लेट्स से तीनों इंस्टेंस ने रिक्वेस्ट भेजी। लेट्स डू दिस सिंपल कैलकुलेशन, आई जस्ट शो यू। सो R1 गई रिक्वेस्ट, ठीक है, बिकॉज रेडिस इज अ सिंगल थ्रेडेड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ गई R2, ये अज्यूम कर लो फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो क्या होगा, रेडिस पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड अंटिल दिस रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड, तब तक जो है बाकी कोई और रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो तुमने क्या किया, तुमने लेट्स से इस सेट में से मान लो 1000 और मे बी x जो है, तुम क्या कर रहे हो कि इस बकेट में से तुम 1000 टास्क आईडीज या 10,000 या 100,000 जो भी तुम्हें एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए है, तुम उतनी टास्क आईडीज को क्लेम करोगे। एंड बिकॉज दिस इज अ लोअर स्क्रिप्ट, दिस रिक्वेस्ट इज अ लोअर स्क्रिप्ट, तो क्या होगा कि जब तक कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तुम्हारी लोअर स्क्रिप्ट ऑन दैट इंस्टेंस, तुम्हारी दूसरी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी। तो लेट्स से तुमने मान लो अभी के लिए अगर तुम्हारे पास 3 टास्क थे, ठीक है, इसमें टास्क आईडी 3, ठीक है, और तुमने बोला कि मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट, हर पोलर एक रिक्वेस्ट को क्लेम करेगा, ठीक है। तो उसका काम क्या है, ये रिक्वेस्ट जाएगी, तुमने बोला इस सेट में से मुझे एक रिक्वेस्ट दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, रेडिस इस रिक्वेस्ट को लेगा, लुआ VM में एग्जीक्यूट करने जाएगा। ये जो तुम्हारी टास्क आईडी है, अज्यूम करते हैं कि ये तुम्हारी जो है टाइम के बेसिस पे सॉर्टेड है, ठीक है। तो जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी है उस पर्टिकुलर टाइम विंडो में, वो पहले है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या करेगा रेडिस, ये रिक्वेस्ट को लेगा, ठीक है, टास्क आईडी को इसको निकालेगा, और इंस्टेंस 1 को ये वाली टास्क आईडी दे देगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो जिस भी इंस्टेंस ने फर्स्ट रिक्वेस्ट करी थी, अब उसने जो है टास्क आईडी 1 क्लेम कर ली है, ठीक है। तो अब ये टास्क आईडी अगर तुम काफका में इंसर्ट करते हो, दैट मीन्स अब जो है बिकॉज तुमने लुआ स्क्रिप्ट में सर्टेन लिमिट ऑफ टास्क आईडीज क्लेम भी करी, साथ ही साथ तुमने जो भी क्लेम करी उनको रिमूव भी कर दिया फ्रॉम दिस सेट। तो अब जो है उस सेट में ही वो आईडीज अब बची नहीं है, तो जब बची नहीं है, तो जब दूसरे इंस्टेंस पर्टिकुलर आईडी को क्लेम करेंगे तो दे विल नॉट गेट द सेम आईडीज। तो तुमने इस तरीके से जो है डीडुप्लीकेशन किया है ऑफ द टास्क आईडी एंड द नेक्स्ट रन एट पेयर का, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट मिल जाएगी, लेट्स अज्यूम, सेकंड वाले को सेकंड, और ये जस्ट जो है इसको बोल देते हैं, और यहाँ पे तुम्हारे थर्ड वाले को थर्ड मिल जाएगी, और ये तुम्हारा जो है बकेट, इसको जस्ट मैं ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट रख रहा हूँ। बाकी अब ये जो है तुम्हारा सेट जो है एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है
कि फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट ने एक आईडी क्लेम कर ली, सेकंड वाली रिक्वेस्ट ने भी एक आईडी क्लेम करी एंड थर्ड वाली रिक्वेस्ट ने भी एक आईडी क्लेम करी। और ये जो कितनी आईडीज क्लेम करनी ये तुम कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो अपने सिस्टम में, ठीक है, कि हर पोल इंस्टेंस जो है कितनी आईडीज को क्लेम करेगा। रिक्वेस्ट claimed by a poll instance। इस कॉन्फ़िगरेशन का जस्ट पर्पस क्या होगा? जस्ट टू मेक श्योर दैट वर्कर नोड्स ऑलवेज हैव समथिंग टू एग्जीक्यूट, और हम लोग कोई भी इवेंट को जो है, कोई भी टास्क को जो है मिस नहीं कर रहे हैं। दैट्स द होल पर्पस, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पाथ पे डीडुप्लीकेशन कैसे किया? अब बिकॉज ऑफ द रेडिस सॉर्टेड सेट्स, तो हम लोगों ने जो है ये पेयर इंसर्ट किया था, इस वजह से हमारा ये हैंडल हो गया। बेसिकली अगर सॉर्टेड सेट में तुम सेम पेयर को इंसर्ट करते हो तो उस समय क्या होगा, एक ही फर्स्ट एंट्री ही जाएगी, सेकेंड एंट्री जो है इंसर्ट नहीं होगी। और इस पाथ में हम लोगों ने कैसे डीडुप्लीकेशन किया है? विद द हेल्प ऑफ द लुआ स्क्रिप्ट, बिकॉज लुआ स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन इन लुआ वीएम्स ऑन रेडिस इंस्टेंस। तो उस वजह से जो है हम जो है एक्स आईडीज को क्लेम करेंगे और उनको जो है साथ ही साथ में रिमूव भी कर देंगे फ्रॉम दैट बकेट। तो in short, Lua scripts we use only when we need to, let's say, do multiple operations, read and write or write or write in Redis, because every time when the write operation is involved, you can have the race condition, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है जो भी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं विच इज claiming the IDs from the pool, एंड पूल क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम बकेट की जितनी भी आईडीज थी कि उस समय जितनी भी एग्जीक्यूट होनी है, उस पूल में से हमने एक्स आईडीज को क्लेम किया एंड जो भी बची, बेसिकली क्लेम किया का मतलब क्या है कि वो आईडीज हमने ले ली एंड वी आल्सो रिमूव देम फ्रॉम द सेट और द टाइम बकेट, ठीक है। तो बची हुई आईडीज कभी दूसरे को जाएंगी नहीं, तो इस पाथ पे भी हमने डीडुप्लीकेशन ऑफ आईडीज कर लिया, इस पाथ पे भी हमने डीडुप्लीकेशन ऑफ आईडीज कर लिया, ठीक है। और काफका में अब जो है सेम आईडी ऑलवेज वंस इंसर्ट होगी। तो हम लोगों ने इस तरीके से एटलीस्ट इंसर्शन तो हैंडल कर लिए इन वर्कर नोड। काफका ऑल्सो गारंटीज एटलीस्ट वंस डिलीवरी। नाउ आई थिंक काफका में एक फीचर भी है एग्जैक्टली वंस डिलीवरी, यू कैन फाइंड इन द काफका, ठीक है। बट मोर और लेस एक आईडी एक ही बार एग्जीक्यूट होगी अब, ठीक है, एटलीस्ट इन दिस आर्किटेक्चर, अज्यूमिंग काफका जो है एग्जैक्टली वंस डिलीवर कर रहा है ईच रिकॉर्ड। तो हम लोगों ने शेड्यूलर सर्विस का भी जो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, तो हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस को हैंडल कर लिया। हमारी पोलर सर्विस जो थी या पोल सर्विस जो थी, ये भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर थी, तो हमने हॉरिजॉन्टली स्केल करके और डीडुप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ बेसिकली डीडुप्लीकेशन ऑन टास्क आईडी नेक्स्ट रन आईडी और लुआ स्क्रिप्ट्स के हेल्प से जो क्लेम कर रहे हैं हम आईडीज उनको भी हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फेलियर पॉइंट देखते हैं हमारे सिस्टम में क्या है। तो ऑब्वियसली एक तो रेडिस है, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि हम लोग जो है अभी सिंगल इंस्टेंस को रन कर रहे हैं। तो बिकॉज यू कैन हैव टू मेनी टाइम बकेट्स, तो तुम अगर उनको सिंगल इंस्टेंस पे रन करोगे देन व्हाट कैन हैपन, ये जो है अगर लेट्स से रेडिस इंस्टेंस गोज डाउन तो पोल सर्विस के पास कुछ भी क्लेम करने के लिए नहीं होगा, करेक्ट। तो उस केस में ऑब्वियसली कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हाउ वुड यू मेक श्योर दैट योर सिस्टम कंटिन्यूज टू हैव टास्क आईडीज विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर क्लेम, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ऑब्वियसली एक फर्स्ट ऑप्शन है टू रन द रेडिस इन क्लस्टर मोड विद सेंटिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा मास्टर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा कि तुम्हारी जो भी रेडिस ऑपरेशंस हैं, रेडिस ऑपरेशंस जो हैं एसिंक्रोनसली रेप्लिकेट होते रहेंगे दूसरी नोड पे एंड व्हेन द मास्टर नोड गोज डाउन तो जो सेंटिनल नोड है इट विल टेक ओवर फ्रॉम देयर। ऑल राइट, अब हम लोग ये देखते हैं और क्या फेलियर पॉइंट्स हो सकते हैं। और फेलियर पॉइंट्स में क्या समझ में आ रहे हैं कि लेट्स से अगर तुम्हारी शेड्यूलर सर्विस
अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारा ये हम शेड्यूलर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों ने उसको हॉरिजॉन्टली स्केल करके हैंडल कर लिया। काफका इटसेल्फ इज अ हाईली अवेलेबल हाईली स्केलेबल सिस्टम। पोल सर्विस को भी हमने हैंडल कर लिया। रेडिस को भी हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस और क्लस्टर मोड में विद सेंटिनल कॉन्फ़िगरेशन रन कर लिया। वर्कर नोड का देखते हैं अब ऑब्वियसली हमारा एक वर्कर तो होगा नहीं बिकॉज दीज जो काफका के टास्क हैं मतलब जो भी टॉपिक में टास्क आ रहे हैं टास्क आईडीज दीज आर इंडिपेंडेंट आईडीज तो उनको हम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो यू कैन हैव मल्टीपल वर्कर नोड्स। ठीक है तो उस तरीके से एक्चुअली में ये दो ही रखते हैं मतलब बस इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टली स्केलेबल सिस्टम है या फिर ये वाला जो है कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो जब भी तुम्हें चाहिए। ठीक है वर्कर नोड ने एग्जीक्यूट किया टास्क को और उसके बाद में डेटा को सेव किया जो भी रिजल्ट आया और उसके बाद में जाके उस टास्क की नेक्स्ट रनएट को अपडेट कर दिया। करेक्ट। अब देखते हैं कि अब मेरा यहाँ पे एक तुम लोगों से जो बेसिकली क्वेश्चन रहेगा कि जब भी तुम कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे तुम्हें कुछ गारंटी करना है तो तुम क्या है डायरेक्टली जस्ट सिस्टम बना के नहीं छोड़ देते हो। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन टू हैंडल द एरर सिनेरियो। जैसे कि अगर तुम देखो तो अभी हमारा सिस्टम जो है मोर और लेस मेरे को तो ठीक ठाक लग रहा है कंप्लीट हो चुका है बट यू ऑल्सो नीड टू हैंडल दी रिकन्सिलिएशन कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि लेट्स से कोई रिकॉर्ड जो है फेल हो गया। सो कहाँ पे फेल हो सकता है सो लेट्स से इस पोल इंस्टेंस ने रेडिस सेट से को लेट्स से एक बैच को क्लेम किया लेट्स से 1 to 1000 आईडीज को क्लेम कर लिया बट बिफोर इट रोड टू काफका टॉपिक इट वेंट डाउन। तो अब क्या हुआ है कि तुम्हारा वो आईडीज जो हैं उस बकेट से भी रिमूव हो गई बट ये काफका में भी नहीं गई। तो देर इज अ चांस कि तुम आईडीज को मिस कर दो। मिस कर सकते हैं ना उस केस में क्योंकि तुम्हारी वो रेडिस से भी रिमूव हो गई आईडीज जो टास्क आईडीज तुम्हें एग्जीक्यूट करनी थी और पोल इंस्टेंस ने भी उनको जो है काफका में इंसर्ट नहीं किया। तो आई थिंक हमें कुछ चाहिए है जिसे हम लोग बोलेंगे रिकन्सिलिएशन। ठीक है तो रिकन्सिलिएशन के लिए लेट्स से एक कंपोनेंट है मेरा। ठीक है इसको मैं बोलूँगा एक रिकन्सिलिएशन सर्विस। तो रिकन्सिलिएशन सर्विस का काम क्या है। रिकन्सिलिएशन सर्विस जो है अब इसकी फ्रीक्वेंसी कि ये कैसे करके रिकंसाइल करेगी मिसिंग इवेंट्स जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। सबसे पहले तुम्हें पता कैसे चलेगा है ना। तो पता चलने का सबसे पहला आइडिया है कि जिन भी टास्क का नेक्स्ट रन एट अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि अगर कोई टास्क लेट्स से मिस हुआ है ठीक है काफका में नहीं गया तो उसका जो है नेक्स्ट रन एट जो है वो तुमसे मतलब करंट टाइम से कम हो जाएगा। वाई क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट रन एट कन्फिग्रेशन या एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि इस टास्क को नेक्स्ट टाइम कब एग्जीक्यूट करना है बट बिकॉज वर्कर नोड नेवर अपडेटेड दिस दिस एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर विंडो के लिए तो ये जो है इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा जो करंट टाइम है वुड बी ग्रेटर देन दी नेक्स्ट रन एट। दैट मीन्स कि ये वो सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे हम लोगों के सिस्टम में कुछ फेलियर हुआ है एंड वी वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देम। तो हम लोग क्या करेंगे डेटाबेस पे मान लो हर 1 मिनट में एक क्वेरी रन करेंगे। क्या हो जाएगी वो क्वेरी सेलेक्ट tar from tasks where now is greater than or equal to
नेक्स्ट रन एट। तो ये क्वेरी में अगर कोई भी हमारा रिकॉर्ड रिटर्न होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि वो रिकॉर्ड जो है कभी भी वर्कर नोड तक पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है? या फिर वर्कर नोड फेल हो गया था, उसने कभी अपडेट नहीं कर पाया था, ठीक है? तो इस क्वेरी से जो है हमारी वो सारी जो मिसिंग एग्जीक्यूशन वाले टास्क थे, हम उनको हैंडल कर सकते हैं। और जब भी हमारा ये मिलेगा, देन व्हाट वी विल डू इज विल आल्सो अपडेट इन रेडिस, ठीक है? अब तुम्हें चाहिए तो तुम रेडिस में भी अपडेट कर सकते हो, तुम्हें चाहिए तो तुम डायरेक्टली भी इसको इंसर्ट कर सकते हो। बट आई थिंक जस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी कि हमारा डेटा फ्लो क्या है कि काफका में जो इंसर्ट करेगा वो हमेशा पोल इंस्टेंस ही करेगा। तो रिकन्सिलिएशन के लिए जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनको हम डायरेक्टली जाके रेडिस में ही इन दैट बकेट स्टोर करेंगे। और पोल सर्विस क्योंकि हमारी कॉन्स्टेंटली रन कर रही है, इट्स नॉट अ क्रॉन जॉब, इट्स अ कंटिन्यूसली रनिंग सर्विस विच लेट्स से claims records from the bucket, and after claiming and inserting them into the Kafka goes to sleep for certain time until the next bucket बेसिकली जब इसको नेक्स्ट बकेट क्लेम करना होता है उससे जस्ट पहले इट कम्स बैक अलाइव, और उसके बाद में फिर से क्लेम करता है फ्रॉम रेडिस एंड देन इंसर्ट्स देम इनटू द काफका एंड अगेन गोज टू स्लीप, ठीक है? तो आई थिंक अब अगर तुम देखोगे कि लेट्स से शेड्यूलर सर्विस फेच करने से अगर पहले ही फेल हो जाती है, अब हम लोग वन बाय वन फेलियर्स देखते हैं इस सिस्टम में कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन शेड्यूलर सर्विस का हो रहा है। लेट्स अज्यूम ऑल ऑफ द इंस्टेंसेस आर नॉट अवेलेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स या कुछ टास्क ऐसे होंगे जिनका नेक्स्ट रन एट हम लोगों ने मिस कर दिया होगा। दैट मीन्स हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि जो है हमारा करंट टाइम नेक्स्ट रन से ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर शेड्यूलर सर्विस डाउन होती है तो वो हमारा रिकन्सिलिएशन से हैंडल हो जाएगा, ठीक है? सेकंड, अगर हम लोगों ने जो ये वाला देखा था कि लेट्स से पोल सर्विस ही डाउन जाती है या पोल सर्विस फॉर सम रीजन इज अनेबल टू इंसर्ट इनटू द काफका टॉपिक, तो अगेन वो भी हमारा रिकन्सिलिएशन सर्विस से हैंडल हो जाएगा, सॉरी रिकन्सिलिएशन सर्विस से हैंडल हो जाएगा। वाई? क्योंकि वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ टास्क, तो उसका नेक्स्ट रन एट जो है वो कभी अपडेट नहीं होगा, तो अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इन द वर्स्ट केस रेडिस इटसेल्फ गोज डाउन, ऑब्वियसली बिकॉज हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रूथ जो है वो डेटाबेस है, नॉट द रेडिस। वी कैन अज्यूम बिकॉज वी कैन अज्यूम रेडिस विल नेवर लेट्स से, मतलब रेडिस की जो अवेलेबिलिटी है वो 99.99% है 4 9 तक, तो अज्यूम कर सकते हैं। बट इन वर्स केसेस लेट्स से रेडिस क्लस्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर सर्टेन टाइम, तो जब रेडिस क्लस्टर इज नॉट अवेलेबल तो पोल इंस्टेंस या पोल सर्विस पोल क्या करेगा? तो उस केस में जो है हमें अब यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है, इनटू काफका एंड नॉट रेडिस, ठीक है? अब हाँ, अब यार मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, लेट्स अज्यूम because reconciliation service itself will run multiple instances, single instance से तो तुम हैंडल नहीं कर सकते, then again we need the deduplication, no? तो अगर तुम्हें deduplication चाहिए है then you need to insert in redis, क्योंकि deduplication हमें redis से चाहिए, बाकी पोल इंस्टेंस हमारा टेक केयर कर ही लेगा। insert missing slash not executed records again in redis। अब यहाँ पे यार हम लोग भी डिलेमा में पड़ गए हैं, हम लोग भी डिलेमा में पड़ गए।
ये डिलेमा, तो अगर लेट्स से हमारा रेडिस अवेलेबल नहीं है, देन देन reconciliation cannot insert directly here. I think if Redis is not, Redis cluster itself is not available, तो उस केस में क्या है, as a fallback mechanism we can also uh, write to Kafka. If Redis cluster is not available, then write to Kafka. बट देन अगेन सेम प्रॉब्लम आ जाएगी, डी डुप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे? लेट मी थिंक, हम लोग डी डुप्लीकेशन कैसे करेंगे? अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, डी डुप्लीकेशन कैसे करके करेंगे? बिकॉज मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ दिस reconciliation service will be running the same query. उस केस में हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस को जो है रन कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम लोग जो है वर्कर नोड पे लोकल कैश रख लें, इन मेमोरी कैश टाइप का, और क्योंकि जो है मेक श्योर करें कि एक लेट्स से वर्कर आईडी मॉड एक्स जो है इसी पार्टीशन से कंज्यूम करेगा, बट दैट्स नॉट पॉसिबल कि अगर लेट्स से वो वर्कर डाउन जाता है तो वो पार्टीशन किसी और को रीअसाइन हो सकता है। हाउ वुड वी हैंडल दिस केस? आई थिंक ये मेरे इंटरव्यू में मेरे से इतना डीप डिस्कशन हुआ नहीं था। आई थिंक बिकॉज इंटरव्यू वाज अराउंड 45-50 मिनट्स, तो इतने सारे एज केसेस डिस्कशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर तुम लोग इस वीडियो में, अगर तुम लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आया तो बताना। प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गई? हम लोगों ने शेड्यूलर सर्विस अगर नॉट अवेलेबल है वो हैंडल कर लिया, ठीक है। पोलर इंस्टेंस फॉर सम रीजन फेल टू राइट टू काफका, वो भी हमने हैंडल कर लिया। वर्कर नोड फेल्ड बिफोर प्रोसेसिंग या बिफोर कमिटिंग दी ऑफसेट, तो काफका रीडिलीवर कर देगा मैसेज, अगेन नो इश्यूज। अगर लेट्स से काफका में कमिट कर दिया हमने एंड फॉर सम रीजन वी वर अनएबल टू अपडेट द नेक्स्ट रन एट, तब भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। बट दिस सिनेरियो जहाँ पे रेडिस क्लस्टर इटसेल्फ इज डाउन, बिकॉज रेडिस की हेल्प से जो है हम लोग डी डुप्लीकेशन कर रहे थे ना सॉर्टेड सेट में, तो हम लोग वहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे रिकन्सिलिएशन सर्विस का? बिकॉज रिकन्सिलिएशन सर्विस itself is running multiple instances and all of those instances will be running let's say exactly same query। तो उस केस में होगा क्या कि अगर मान लो बिकॉज रीड क्वेरीज है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था आरडीवी में जो है, बिकॉज रीड्स आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग, तो रीड जो है बेसिकली कंकरेंसी इंप्रूव करने के लिए दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा, दोनों क्वेरीज को, बिकॉज दे आर नॉट मॉडिफाइंग एनीथिंग। तो वो दोनों जो है चांसेस हैं कि उनके पास सेम सेट ऑफ आईडीज रिटर्न हो, एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट लेट्स से कम्युनिकेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, तो उस केस में कैसे करके करोगे यार? उस केस में तुम लोग कैसे करके मेक श्योर करोगे कि हम लोग जो है डुप्लीकेट आईडीज काफका में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं? पहले तो हमारा रेडिस हैंडल कर रहा था, बिकॉज इन रेडिस वी वर इंसर्टिंग टास्क आईडी एंड नेक्स्ट रन एट इन दैट बकेट, तो वो हैंडल कर रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि रेडिस ही अवेलेबल नहीं है। तो रेडिस अगर अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे भी हम लोग लोकल कैश नहीं रख सकते, आई थिंक ये जो है मेरे को सोचना पड़ेगा क्या सल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। पता नहीं यार। एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे हम कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंसर्टिंग देम, हम लोग जो है यहाँ पे एक कंपोनेंट इंसर्ट कर दें। बट वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा ओवरकिल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरकिल ना हो जाए वो, कि जो है डायरेक्टली इंसर्ट काफ़का में नहीं करेंगे। बेसिकली एक काफ़का टॉपिक बीच में रखेंगे और वहाँ पे हम लोग पार्टीशन करेंगे बाय 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 टास्क आईडी, तो 2 टास्क सेम उसमें ही आएँगे। आई थिंक तो सेम चीज़ तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो अलग से कंपोनेंट डालने की ज़रूरत क्यों है? तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से ए हम लोगों जो भी इंसर्ट कर रहे हैं जो टास्क यहाँ पे, डुप्लीकेट्स हो सकते हैं डेफिनिटली, बट हाउ डू वी हैंडल दोज़ डुप्लीकेट्स? फर्स्ट थिंग इज़ कि एक चीज़ हम कर सकते हैं कि वर्कर नोड पे हम लोग जो आईडीज़ हम प्रोसेस कर रहे हैं, उनका लेट्स से कुछ एक टाइम मेंटेन करें, या फिर उन आईडीज़ को मेंटेन करें कि लास्ट एक्स विंडो में हमने इतनी आईडीज़ को प्रोसेस किया है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों क्वेरीज़ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रन हुई थी, दैट्स व्हाई वी गॉट द सेम रिजल्ट्स, ऑब्वियसली वही तो कॉज़ है। तो अगर हम लेट्स से एक्स टाइम विंडो मेंटेन कर लें कि लास्ट एक्स एक्स सेकंड्स में हमने कितने रिकॉर्ड्स प्रोसेस किए हैं और उनकी आईडीज़ क्या-क्या हैं, एंड बिकॉज़ द पार्टीशन होल्ड्स ऑल द डेटा, बेसिकली अगर 2 आईडीज़ हैं और both of them have the same partition, basically both of them have the same ID, तो they will land on the same partition। ये हम लोग जो है पार्टीशन करने के लिए टास्क आईडी को यूज़ करेंगे, और जो भी वर्कर वहाँ से कंज्यूम करेगा, वहाँ पे हम लोग जो है लास्ट 5 मिनट की विंडो मेंटेन कर लेंगे, कि अगर लास्ट 5 मिनट में हमने उस आईडी को नहीं देखा है, ओनली देन वी विल एग्जीक्यूट। बट इसमें भी पॉसिबिलिटी तो है यार, मान लो पहली बार एग्जीक्यूट करने के बाद वर्कर नोट डाउन हो गई, तो जो पार्टीशन था वो दूसरी वर्कर नोड को असाइन हो गया, देन अगेन वी हैव द सेम प्रॉब्लम। आई थिंक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको कैसे हैंडल करोगे इफ रेडिस इज डाउन? एक पॉसिबिलिटी तो मतलब ये भी है कि तुम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है डायरेक्टली रीड ना करो, जो भी तुम्हें आईडीज आई हैं उनका तुम यहाँ पे स्टेटस अपडेट करो, बेसिकली क्लेम तुम इस डेटाबेस में करो जाके, अगर रेडिस डाउन है तो फॉलोबैक लॉजिक ऑब्वियसली यहाँ पे रख सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू लेट्स से स्टेटस इज, अब यार स्टेटस जो है पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है इसका। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम तुम लोगों को समझ में आ गई तो बताना कि हम लोगों का अगर रेडिस क्लस्टर इज नॉट अवेलेबल बट वी स्टिल वांट टू एग्जीक्यूट टास्क, तो उस केस में हम लोग जो है हमारी जो रिकन्सिलिएशन सर्विस है, रिकन्सिलिएशन और इवन शेड्यूलर, दोनों को सेम ही पाथ फ्लो फॉलो करना पड़ेगा सर्टेन टाइम, जब तक कि हमारा जो है रेडिस क्लस्टर बैकअप नहीं आ जाता। मेरे को ज़्यादा यार अभी समझ नहीं आ रहा है कि स्टेटस रख के भी हम क्लेम वगैरह करके भी कर सकते हैं, बट देन वी विल टेक अ हिट ऑन परफॉर्मेंस। आई थिंक यही मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को जो है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल हैव टू डिस्कस विद योर इंटरव्यूअर कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, और तुम जो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दिस सिनेरियो को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। यू कैन नेवर अवॉइड द सिनेरियो, बट यू कैन ऑलवेज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि हम लोग सेम पार्टीशन पे राइट करेंगे, और वर्कर में जो है लास्ट एक्स मिनट्स या मान लो 1 घंटे का जो है टास्क आईडीज मेंटेन करेंगे, और वर्कर आईडी जो है वर्कर नोड तभी प्रोसेस करेगा उस आईडी को जब उस सेट में अवेलेबल नहीं होगी, इसके लोकल कैश में अवेलेबल नहीं होगी। बट देन वो रीपार्टीशनिंग वाली सिनेरियो आ जाती है। अ, दूसरा चीज़ है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेटस एक फील्ड रख सकते हैं ओरिजिनल टेबल में, कि जब भी हम क्लेम करें, ये थर्ड फॉल बैक है हमारा। फर्स्ट फॉल बैक, फर्स्ट ऑब्वियसली मेन फ्लो इज रेडिस, सेकंड इज writing to same Kafka partition with worker nodes having local cache, and third option, third fallback is the is let's say keeping a status variable status. Every time we claim a task, we set its
स्टेटस फ्रॉम पेंडिंग टू क्लेम्ड। ठीक है, और तो इसकी क्वेरी क्या हो जाएगी अब, एंड स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग। बट आई थिंक ये सब चीज़ें तुम्हें जो है अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस करनी पड़ेंगी। ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या तुम सोच रहे हो उस सिचुएशन में, उसको क्या समझ में आ रहा है वगैरह वगैरह। बट मेरे को तो इतना ही समझ में आ रहा है कि तो उससे क्या होगा कि जो तुमने पिछले मतलब फर्स्ट इंस्टेंस ने जो क्लेम कर लिए थे, अब वो सेकंड इंस्टेंस जो है इवन सेम क्वेरी रन करता है तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा। कर तो अभी भी सकता है क्योंकि तुम अपडेट थोड़ी ही कर रहे हो। ये तो ये रीड एंड देन अपडेट है ना, तो तुम क्वेरी रन करोगे, जो आईडीज आएंगी उनके लिए तुम अपडेट करोगे। पता नहीं यार। आज की वीडियो को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताना अगर तुम लोगों को इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन मतलब और भी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन समझ में आता है तो। बाकी यार, ये सिस्टम मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स थे, कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे, और बेसिकली फेलियर सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ शायद रहेगी ना डिस्कशन के लिए, स्केलेबिलिटी हम लोगों ने हैंडल कर ली। हम लोग पूरे डेटा सेट पे काम नहीं कर रहे हैं बल्कि एक स्मॉल डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। सेकंड, लो लेटेंसी हमने कैसे हैंडल किया कि हम लोगों ने ये जो है क्वेरी एक बार रन कर रहे हैं, लेट्स से हर 30 मिनट में उसका डेटा हम लोग रेडिस में इंसर्ट करते रहे, तो 30 मिनट की क्वेरी अगर फ्यूचर के टास्क हैं जो हमारे, वो 30 मिनट पहले अगर हम उनको इंसर्ट कर दे रहे हैं इन रेडिस, तो आई थिंक अगर 2-3 सेकंड ले भी लेती है एग्जीक्यूशन, देन स्टिल इट्स फाइन। पोलर उनको क्लेम कर सकता है टाइमली एंड देन इंसर्ट देम इनटू काफका। सो आई थिंक लो लेटेंसी सिस्टम भी हमारा हैंडल हो गया। ड्यूरेबिलिटी इज ड्यूरेबिलिटी इज आई थिंक ड्यूरेबिलिटी था कि जो भी हम लोग कॉल कर रहे हैं एक्सटर्नल सिस्टम को, उसको हम लोग परसिस्ट कर रहे हैं कहीं S3 में या कोई ऐसे स्टोरेज में जो ड्यूरेबल। आई थिंक वो मैंने ऐसे ही लिख दी थी। आई थिंक इट वाज नॉट द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। आ, ठीक है यार, हम लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर ली हैं। हमारे जो टास्क हैं वो सही टाइम पे शेड्यूल हो रहे हैं एंड दे आर ऑलवेज बीइंग शेड्यूल्ड फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग वायलेट नहीं कर रहे हैं। इन केस सम ऑफ द इवेंट्स आर मिस्ड और सम ऑफ द टास्क आर मिस्ड, उस केस में जो है हम अपनी रिकन्सिलिएशन से उन सारे इवेंट्स को हैंडल कर ले रहे हैं, टास्क को हैंडल कर ले रहे हैं। ठीक है यार, इसका किसी को सोल्यूशन समझ में आया तो बताना। बाकी आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।